Hi guys. In this lecture, we are going to discuss about the Hartnell governor. This governor is also a type of centrifugal governor because this governor works based on the centrifugal forces. Apart from Porter and Hartnell governor, there are many other centrifugal governors are also there. But from the point of your syllabus, you are having only Porter governor and Hartnell governor. And this governor is similar to the Porter governor, only the difference is here spring is attached to the sleeve. In this governor, spring is attached to the sleeve, and the arrangement of arms is little bit different from the Porter governor. And this governor was introduced by Hartnell governor. This governor was introduced by the name of the scientist is Hartnell. This is the name of the scientist. So this governor is named as the Hartnell governor. Okay, and here the spring in this governor, spring is used to increase the performance of the governor. Okay, so here you can see the actual diagram of the Hartnell governor. So here this is the line diagram. This is actual diagram, and this is line diagram. So here this Hartnell governor consists of fly balls or governor balls. These are the two governor balls. Okay, and these governor balls are connected to the sleeve. This is the sleeve. Okay, these governor balls are connected to the sleeve by means of vertical arm and horizontal arm. So here the balls are connected to the sleeve by means of vertical arm and horizontal arm. So this is vertical arm, okay, and this is horizontal arm. Okay, whereas in Porter governor we have upper arm and lower arm. Okay, and in the Porter governor lower arms are connected to sleeve, and upper arms are connected to the axis of the spindle. Okay, or upper arms are connected to the spindle, but here the fly balls are connected only to the sleeve. Okay, these balls are connected to the sleeve by means of vertical arm and horizontal arm. This is this from A to from this vertical line, this is vertical arm, and this horizontal line, this is horizontal arm. Okay, so next this is the sleeve. Okay, and this also this governor is also having a spindle. This middle one, ये जो बीच में दिख रहा है ना, we have taken it as D. This is a spindle. Okay, on the spindle, the spring is mounted on this spindle. The spring is mounted, and this spring is connected to the sleeve. A और A दोनों sleeve हैं, part of the sleeve. Okay, and this spring is connected to the sleeve. Okay, spring is mounted on the spindle, so in such a way that this spring is attached to the sleeve. Okay, so during operation what happens here, when the governor starts to rotate or revolve, okay, these balls starts to move outward. जब गवर्नर जो है ना, गवर्नर का स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो ये फ्लाई बॉल्स जो है ना बाहर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब दे विल मूव आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन. Okay, due to the centrifugal forces. So because of which since these fly balls are connected to the sleeve at this point, this sleeve will starts to move upward. This sleeve will starts to move upward, because of which this spring gets compressed. Okay, in the similar way, when the speed of the governor decreases, जब गवर्नर का स्पीड डिक्रीज होने शुरू हो जाता तो ये फ्लाई बॉल्स जो है ना अंदर आना शुरू हो जाते हैं. द फ्लाई बॉल्स और गवर्नर बॉल्स स्टार्ट्स टू मूव इनवर्ड. ओके, ऐसे अंदर आना, इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं. ओके, सो बिकॉज ऑफ विच दिस स्लीव विल स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड. Okay, because of which again this spring will starts to expand. Okay, this is what the working of the Hartnell governor. So here in this lecture
we are going to discuss about the derivation on this Hartnell governor. So here I will take only the position here in the derivation I am going to take only the position of the fly balls. Okay, I am going to consider the only the position of the fly balls for the derivation, and in this derivation we are going to find out the expression for stiffness of the spring as well as force at centrifugal force at maximum centrifugal force at maximum radius of rotation, minimum radius of rotation and mean radius of rotation. यहाँ पे इस डेरिवेशन में हम क्या करते हैं बोले तो यहाँ पे फ्लाई बॉल्स का जो है मैक्सिमम, मिनिमम और मीन पोजीशन लेके एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं. किसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं बोले तो ये स्प्रिंग का स्टिफनेस है ना, उसका हम स्टिफनेस का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. और एंड आल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्स एट मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, centrifugal force at maximum radius of rotation and centrifugal force at minimum radius of rotation and centrifugal force at mean radius of rotation. तो अब यहाँ पे डायग्राम में क्या करता हूँ मैं, सिर्फ ये हाफ सेक्शन लेता हूँ. यहाँ पे डेरिवेशन में क्या करता हूँ मैं, ये हाफ सेक्शन ऑफ द गवर्नर लेता हूँ फॉर द डेरिवेशन. ये हाफ सेक्शन मतलब ये लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वो उतना ही पार्ट लेके मैं यहाँ पे डेरिवेशन करता हूँ. तो यहाँ पे देखो जब मैं इस हाफ पार्ट मतलब लेफ़्ट साइड का मैं गवर्नर लिया बोले तो सिर्फ एक ही फ्लाई बॉल हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, और ये फ्लाई बॉल का जो है मैक्सिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन और मीन पोजीशन, ये तीनों पोजीशन कंसिडर करके हम डेरिवेशन करेंगे. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हाफ सेक्शन जो है हार्टनेल गवर्नर का वो लाइन डायग्राम में निकालता हूँ. सो व्हेन यू ड्रॉ द लाइन डायग्राम, ओके, व्हेन यू ड्रॉ द लाइन डायग्राम फॉर द हाफ सेक्शन ऑफ द हार्टनेल गवर्नर, सो द डायग्राम विल बी लाइक दिस. यहाँ पे मैं और नीटली निकाला हूँ. ओके, सो दिस इज व्हाट द लाइन डायग्राम ऑफ द हार्टनेल गवर्नर. दिस इज फ्लाई बॉल. So here I will write, if you want you can write it. So here you can see the line diagram of the Hartnell governor. ये जो है ओरिजिनल पोजीशन है. यहाँ पे देखो ये बॉल का जो पोजीशन है मीन पोजीशन, मतलब यहाँ पे गवर्नर का स्पीड ज़्यादा भी नहीं रहता, कम भी नहीं रहता. ये जो है मीन पोजीशन ऑफ द हार्टनेल गवर्नर और मीन पोजीशन ऑफ द फ्लाई बॉल और गवर्नर बॉल. यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये फ्लाई बॉल है और ये लाइन जो है वर्टिकल आर्म है और ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल आर्म है. तो यहाँ पे देखो 3 डिफरेंट पोजीशंस लेता हूँ मैं. इस गवर्नर का जो 3 डिफरेंट पोजीशंस पे लेता हूँ. यहाँ पे देखो जब गवर्नर का स्पीड ज़्यादा हो जाता है, जब गवर्नर का स्पीड जो है ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ना हॉरिजॉन्टल आर्म ये स्लीव को कनेक्टेड है. ठीक है, तो जब गवर्नर का स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो स्लीव ऊपर मूव होना शुरू होता है. मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ आ जाता है. यहाँ पे बी से B2 पोजीशन पे आ जाता है. जब गवर्नर का स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो स्लीव ऊपर हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है और जो स्लीव जो है ना यह हॉरिजॉन्टल आर्म को कनेक्टेड रहता है. ठीक है, तो स्लीव जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन पे पहुँचेगा, ये मैक्सिमम पोजीशन रहेगा स्लीव का. तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म है नी B से B2 तक पहुँचेगा. जब ये हॉरिजॉन्टल आर्म B से B2 पहुँचेगा, यहाँ पे जो वर्टिकल आर्म जो है नी यहाँ पे देखो ये से A2 को पहुँचेगा ऐसे बाहर की तरफ. जब स्पीड ज़्यादा होता है तो बॉल्स जो है ना आउटवर्ड मूव होंगे, तो इसलिए बॉल जो है ना A से A2 पे आ जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन. ये जो है यहाँ पे जो है बॉल जो है मैक्सिमम पोजीशन पे रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट पे जब बॉल A2 पे पहुँचता है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन है गवर्नर का R2 करके लिया हूँ. यहाँ पे देखो ये लाइन जो है स्पिंडल, एक्सिस ऑफ स्पिंडल है. यहाँ पे देखो ये एक्सिस है
ओके। रेडियस ऑफ रोटेशन देखो ये पॉइंट से, मतलब यहाँ पे बॉल अभी मैक्सिमम पोजीशन पे यहाँ पे पहुँच गया है। सो सेंटर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ रोटेशन। तो ये पोजीशन पे रेडियस ऑफ रोटेशन में R2 करके लिया हूँ। ओके, ये मैक्सिमम पोजीशन होगा गवर्नर का। अब नेक्स्ट मिनिमम पोजीशन। मिनिमम पोजीशन देखो, जब गवर्नर का स्पीड डिक्रीज़ होने शुरू हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्लीव जो है नीचे की तरफ आने शुरू होता है। जब गवर्नर का स्पीड डिक्रीज़ होता है तो ये जो स्लीव जो है ना नीचे आने शुरू होता है। तो यहाँ नीचे कैसे, कहाँ से कहाँ तक आएगा, B से B1 तक आएगा, B से B1 तक आएगा। ठीक है, तो जब B से B1 तक आएगा और ये हॉरिजॉन्टल आर्म का पोजीशन जो है ना ऐसे आएगा। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल आर्म का पोजीशन जो नहीं यहाँ से यहाँ आएगा, B1 तक पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हॉरिजॉन्टल आर्म ये पोजीशन में आएगा तो वर्टिकल आर्म जो है ना ये पोजीशन में आएगा। यहाँ पे देखो O2 A1, यहाँ पे जब गवर्नर का स्पीड डिक्रीज हो जाता है तो स्लीव जब नीचे आ जाता है तो बॉल जो है नी बॉल का पोजीशन जो है ना अंदर की तरफ आएगा। यहाँ से देखो A से A1 तक आएगा, मतलब ये जो है वर्टिकल आर्म का पोजीशन रहेगा और ये जो है बॉल का पोजीशन रहेगा जब जो है स्पीड डिक्रीज होता है। और ये B1 जो पोजीशन है ना ये गवर्नर का मिनिमम स्पीड का पोजीशन है। ओके, यहाँ पे देखो जब गवर्नर का स्पीड मिनिमम पोजीशन, जब ये फ्लाई बॉल A1 पे पहुँचता है तो वो गवर्नर का स्पीड जो है मिनिमम रहेगा। ठीक है, उससे कम नहीं होगा। तो ये बॉल का पोजीशन जो है हम मिनिमम पोजीशन करके कंसिडर करके, ये बॉल का गवर्नर बॉल का जो पोजीशन है उसको हम मिनिमम पोजीशन ऑफ द गवर्नर करके कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे रेडियस ऑफ रोटेशन गवर्नर का जो है R1 करके लिया हूँ मैं। ये पोजीशन पे गवर्नर का रेडियस ऑफ रोटेशन जो है R1 करके लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस, द डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल, ये है R1। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल r ये जो है रेडियस ऑफ रोटेशन एट मीन पोजीशन ऑफ द गवर्नर। जब गवर्नर जो है मीन पोजीशन पे रहता है, मतलब ये फ्लाई बॉल जो है मैक्सिमम स्पीड पे भी नहीं रहेगा, मिनिमम स्पीड पे भी नहीं रहेगा। जब गवर्नर जो है मीन पोजीशन, मतलब गवर्नर का स्पीड मैक्सिमम भी नहीं रहेगा, मिनिमम भी नहीं रहेगा, जब जो है रेडियस ऑफ रोटेशन जो है स्मॉल r करके लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब एक बार जो है स्लीव जो है B से B2 तक गया, ये जो है मैक्सिमम स्पीड हुआ। ओके, और नेक्स्ट गवर्नर जो है मिनिमम स्पीड पे B से B1 तक आया। तो मतलब टोटल जो ट्रैवल कितना कर सकता है गवर्नर, टोटल स्लीव जो है कितना ट्रैवल कर सकता है बोले तो x डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ये जो डिस्टेंस है x B1 से B2, यही जो है स्लीव जो है इतना ही मूव कर सकता है। तो हम इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्लीव लिफ्ट करके बोलते हैं। इस x डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्लीव लिफ्ट करके बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, स्लीव जो है B1 से B2 तक इतना ही डिस्टेंस जाएगा, उससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा, उससे कम भी नहीं जाएगा, तो उसको हम स्लीव लिफ्ट बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस को है स्लीव लिफ्ट करके बोलते हैं। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, नाउ आई विल डिस्कस हियर। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, वो टर्म्स यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जस्ट आई विल डिस्कस हियर। द अबव लाइन डायग्राम शोज द मैक्सिमम, मिनिमम एंड मीन पोजीशन ऑफ द हार्टनल गवर्नर। तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम में जो है 3 पोजीशंस लिया हूँ, मैक्सिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो लेट R2 मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। तो मैं पहले अभी जो डिस्कस किया, R2 जो है मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा, R1 जो है मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा, स्मॉल r जो है मीन रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा। F2 यहाँ पे देखो, F2 जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट रेडियस R2। इस जब गवर्नर बॉल जो है ना ये पोजीशन पे आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉल पे कितना एक्ट हो रहा है बोले तो F2। जब बॉल जो है ना ये पोजीशन पे आता है तो जब उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है F2 करके लिया। सिमिलरली
F1 फोर्स F1 इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट रेडियस R1। जब बॉल इस पोजीशन पे जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना F1 करके लिया। सिमिलरली ओनली F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट रेडियस R, इस पोजीशन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है F करके लिया। ओके, नेक्स्ट S2 स्प्रिंग फोर्स एट रेडियस R2। सो यहाँ पे हम हार्टनेल गवर्नर में स्प्रिंग अटैच रहता है स्लू पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे S2 जो है स्प्रिंग फोर्स एट रेडियस R2। जब यहाँ पे देखो, जब इस बॉल जो है इस पोजीशन पे जाता है तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाता है, मतलब स्प्रिंग पे कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो जो फोर्स है मैं S2 करके लिया हूँ। ओके, सिमिलरली S1 स्प्रिंग फोर्स एट रेडियस R1। जब ये पोजीशन पे बॉल आता है तो मतलब यहाँ पे देखो ये पोजीशन पे बॉल आता है तो स्लीव नीचे की तरफ गया रहता है। यहाँ पे देखो स्लीव जो है नीचे की तरफ आया रहता है, ठीक है। जब स्लीव नीचे की तरफ आया रहता है तो स्प्रिंग जो है एक्सपैंड होता है, मतलब वहाँ पे भी कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो फोर्स को मैं S1 करके लिया हूँ, ठीक है। सिमिलरली सिर्फ S जो है स्प्रिंग फोर्स एट रेडियस R। सो इस पोजीशन में बॉल रहता है तो यहाँ पे स्लीव जो है यहाँ पे ये पोजीशन पे रहता है, तो इस टाइम पे भी स्प्रिंग पे कुछ फोर्स एक्ट होता रहता है, तो उस फोर्स को मैं S करके लिया हूँ। सिमिलरली स्मॉल s और स्मॉल क्या आप ले सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। सो स्टिफनेस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। सो दैट पैरामीटर यू हैव टू कंसिडर इफ़ यू आर यूजिंग स्प्रिंग। आप जब स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग का स्टिफनेस को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टिफनेस जो है स्प्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हम डेरिवेशन में इसी का एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं, इसी स्मॉल s का ही एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं, मतलब स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ही फाइंड करने वाले हैं। और उसके बाद जो है F1 और F2 इसके एक्सप्रेशंस फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में स्मॉल s का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, नेक्स्ट F1 और F2 इन तीनों के भी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ओके, लेट इट बी। सो नेक्स्ट ईयर स्मॉल a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वर्टिकल आर्म। यहाँ पे देखो ये स्मॉल a जो है ना, यहाँ पे a करके लिखता हूँ, लेंथ ऑफ द वर्टिकल आर्म। ये जो है वर्टिकल आर्म है, तो इस O2A जो है नी इसको हम वर्टिकल ये लेंथ ऑफ द वर्टिकल आर्म लेते हैं। नेक्स्ट स्मॉल b लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल आर्म। स्मॉल b है नी, यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो है हॉरिजॉन्टल आर्म का लेंथ है। ये स्मॉल b जो है हॉरिजॉन्टल आर्म का लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम वर्टिकल आर्म को हम बॉल आर्म करके बोलते हैं, क्योंकि ये जो वर्टिकल आर्म जो है नी बॉल को कनेक्टेड है, तो इसलिए हम बॉल आर्म करके बोलते हैं वर्टिकल आर्म को। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल आर्म को हम स्लीव आर्म करके बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आर्म जो है ना स्लीव को कनेक्टेड है, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल आर्म को स्लीव आर्म करके ही बोलते हैं। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्स बोला ना मैं, टोटल लिफ्ट ऑफ द स्लीव, मतलब स्लीव जो है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है बोले तो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और वो एक्स को हम क्या बोलते हैं, टोटल लिफ्ट ऑफ द स्लीव। ओके, नेक्स्ट स्मॉल m जो है मास ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे हम स्मॉल m लिए हैं, यहाँ पे देखो सभी बॉल्स पे लिखा हूँ मैं स्मॉल m करके, ये मास ऑफ द बॉल है, और ये g जो है ग्रेविटी है। ओके, नेक्स्ट कैपिटल M इज़ नथिंग बट सेंट्रल मास और मास ऑन स्लीव। तो यहाँ पे स्लीव पे जो है ना जो मास एक्ट हो रहा है उसको हम कैपिटल M करके लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट W इज़ वेट ऑफ स्लीव और वेट ऑन द स्लीव। ओके, ये मास जो है ना आप उसको लेके आप वेट भी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे W करके हम W जो है वेट ऑफ द स्लीव और वेट ऑन द स्लीव करके कंसिडर किया है। सो दिस W इज इक्वल टू दिस कैपिटल W इज इक्वल टू ये कैपिटल M इंटू स्मॉल g। ओके, एंड नेक्स्ट स्मॉल w इज इक्वल टू मास ऑफ ईच बॉल। ये बॉल का मास जो स्मॉल w जो है नी वेट ऑफ ईच बॉल है। तो ये बॉल्स का जो है नी, ये बॉल्स का वेट जो है नी
क्या स्मॉल w करके लिए हैं, एंड दिस कैन बी फाइंड बाय दिस रिलेशन स्मॉल m इंटू g. Next, n2 is maximum speed at radius r2. Okay. Next, n1 is minimum speed at radius r1. N is the mean equilibrium speed. Okay. So now we shall use the equations to find out the relationship between relation of or equation of stiffness of the spring and next forces, centrifugal forces at 3 different positions. Okay. तो यहाँ पे मैं अभी डेरिवेशन स्टार्ट करने वाला हूँ. यहाँ पे देखो पहले मैं मूवमेंट्स लेता हूँ. यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, मूवमेंट्स लेता हूँ. ओके. वो पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ. वो पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ. किसका मूवमेंट लेता हूँ बोले तो अभी यहाँ पे वो पॉइंट पे यानी मूवमेंट लेता हूँ व्हेन द बॉल इज एट मैक्सिमम पोजीशन. ये पोजीशन पे जब बॉल रहता है तो इसका मूवमेंट लेता हूँ वो पॉइंट पे. अबाउट वो पॉइंट आई विल टेक दी मूवमेंट व्हेन द गवर्नर इज एट मैक्सिमम पोजीशन. जब गवर्नर मैक्सिमम पोजीशन पे रहता है तो मैं अब मोमेंट अबाउट वो लेता हूँ, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट. सिर्फ यहाँ पे देखो गवर्नर जो है मैक्सिमम पोजीशन पे रहता है तो इस पॉइंट पे मैं मोमेंट लेता हूँ. गवर्नर कब मैक्सिमम पोजीशन पे रहेगा, गवर्नर जो है मैक्सिमम पोजीशन जब तब रहेगा कि ये बॉल जो है नहीं यहाँ पे A2 पे रहना चाहिए. जब बॉल जो है A2 पे रहना चाहिए और रेडियस ऑफ रोटेशन R2 होना चाहिए जब जो है गवर्नर का स्पीड जो है मैक्सिमम रहेगा. तो इस पोजीशन पे ये पोजीशन और यहाँ पे देखो ये पोजीशन, अभी ये पोजीशन मैं कंसिडर करके ये पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पे वही लिखा हूँ, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट O फॉर मैक्सिमम रेडियस नेग्लेक्टिंग मास ऑफ बॉल एंड ऑब्लिगिटी ऑफ आर्म्स. तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अबाउट पॉइंट O आई विल टेक द मोमेंट्स व्हेन द गवर्नर इज एट मैक्सिमम पोजीशन. मैक्सिमम पोजीशन बोले तो ये पोजीशन यहाँ पे देखो A2 O B2, ये पोजीशन पे मैं अभी मोमेंट निकालता हूँ वो पॉइंट पे. ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मास ऑफ द बॉल ये जो है mg इसको नेग्लेक्ट करते हैं और क्या करते हैं हम यहाँ पे देखो ये आर्म जो है ना हॉरिजॉन्टल, जब गवर्नर मैक्सिमम पोजीशन पे रहता है तो हॉरिजॉन्टल आर्म देखो यहाँ पे देखो कुछ एंगल पे शिफ्ट हुआ है और वर्टिकल आर्म भी जो है ना यहाँ पे देखो कुछ एंगल पे शिफ्ट हुआ है, कुछ एंगल पे यहाँ पे शिफ्ट हुआ है. बट यहाँ पे क्या करते हैं, मोमेंट लेते जब है ना वो एंगल्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं. मतलब इस पॉइंट पे ये जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल आर्म का लाइन जो है ना परपेंडिकुलर है करके समझते हैं, और ये वर्टिकल लाइन जो है ना वर्टिकल आर्म भी है ना हम परपेंडिकुलर है करके समझते हैं. इस एंगल को कुछ कंसिडर नहीं करते. इवन दो ये यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल और आर्म और वर्टिकल आर्म जो है ना कुछ एंगल पे है बोले तो हम उस एंगल को कंसिडर नहीं करेंगे, हम परपेंडिकुलर है करके कंसिडर करके इस पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे. अभी मैं मोमेंट निकालने वाला हूँ सिर्फ मैक्सिमम पोजीशन के लिए. मतलब जब जो बॉल है ना ये पोजीशन पर रहता है तो स्लीव जो है हॉरिजॉन्टल आर्म जो है ये पोजीशन पर रहेगा. तो मैं यहाँ पे देखो A2 O B2 इतना ही कंसिडर करूँगा. तो यहाँ पे देखो फोर्स का यहाँ अबाउट पॉइंट O मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ तो इसलिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आर्म का जो डिस्टेंस है ये है. ठीक है. अभी इस पॉइंट पे मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ बोले तो इस पॉइंट में इस पोजीशन का मोमेंट निकाल रहा हूँ बोले तो फोर्स यहाँ पे है, इसका मोमेंट निकालना है. टोटल 2 फोर्सेस हैं ये पोजीशन में, मैक्सिमम पोजीशन में जो है ना 2 फोर्सेस हैं यहाँ पे. एक F2 है और एक यहाँ पे mg प्लस S2/2 ये एक फोर्स है. तो पहले मैं F2 का मोमेंट निकालता हूँ अबाउट दिस पॉइंट. सो F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस O एंड F2. ओके. तो यहाँ पे देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे देखो वर्टिकल आर्म का जो लेंथ जो है A है तो मैं F2 इंटू A किया बोले तो इस फोर्स का मोमेंट निकलेगा अबाउट पॉइंट O. अभी मैं यहाँ पे देखो अबाउट पॉइंट O ये फोर्स का मोमेंट निकाल रहा हूँ. तो ये फोर्स का मोमेंट जो है दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट O एंड फोर्स F2. ठीक है. तो ऐसे हमको मोमेंट निकालना है. तो फोर्स F2 यहाँ पे है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन दिस फोर्स एंड ओ इज़ ए, क्योंकि वर्टिकल आर्म का लेंथ जो है ए है, मतलब ये भी ए रहेगा, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ना ये भी ए रहेगा, और यहाँ से यहाँ ये भी डिस्टेंस जो है ना ये भी ए रहेगा। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल आर्म यहाँ भी बी रहेगा और यहाँ पे भी बी रहेगा। तो अभी मैं मूवमेंट निकाल रहा हूँ, इस फोर्स का अबाउट पॉइंट ओ मूवमेंट निकाल रहा हूँ। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए, तो ये एफ इंटू ए, सॉरी F2 इंटू ए। ओके, सो दिस फोर्स इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट दिस पॉइंट। अभी देखो ये पॉइंट आप कंसिडर करो, यहाँ पे देखो ये फोर्स का डायरेक्शन जो है ऐसे है। तो अबाउट दिस पॉइंट आप अबाउट ये पॉइंट आप सेंटर करके इस फोर्स को आप घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा अबाउट दिस पॉइंट। यहाँ पे देखो ये पॉइंट को आप फिक्स करके ये फोर्स, यहाँ देखो ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये अभी मैं रोटेट किया तो इस फोर्स को तो ऐसे घूमेगा अबाउट दिस पॉइंट। ये पॉइंट सेंटर बना के आप ये फोर्स को आप घुमाएंगे, ये इसके डायरेक्शन में बोले तो ऐसे ही घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज आ। सो इसका डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज बोले तो माइनस, सो नेगेटिव यू हैव टू टेक बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट और एक फोर्स है यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन पे, यहाँ पे देखो ये वाला mg प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मूवमेंट निकालना है अबाउट दिस पॉइंट O। सो दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B, सो दिस फोर्स इनटू B। पहले यहाँ पे फोर्स लिखता हूँ मैं mg प्लस S2 बाय 2। यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन जो है इस फोर्स का डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है। तो मैं इस पॉइंट को मैं फिक्स किया और इस फोर्स को मैं घुमाया अबाउट दिस पॉइंट बोले तो इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज, सो आई हैव टू टेक दिस मोमेंट एज प्लस। ओके, सो अभी दूसरे इस पोजीशन पे और कोई दूसरा फोर्स नहीं है। ये स्मॉल m जो है हम इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, फोर्स नहीं है, वो मास है, वेट है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ दो ही फोर्स होंगे इस पोजीशन पे, तो इक्वल टू 0 बनाता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, माइनस F2 इंटू ए दैट इज इक्वल टू माइनस mg प्लस S2 होल डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे माइनस माइनस विल गेट कैंसल। ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, F2 इंटू ए दैट इज इक्वल टू mg प्लस S2 डिवाइड बाई 2। ओके, सो नाउ मुझे mg प्लस S2 इधर ही रखिए, S2 को मैं इधर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे B डिस्टेंस भूल गए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस B इसको भूल गए थे, यहाँ पे लिख दो B करके, ठीक है। यहाँ पे देखो mg प्लस S2 मैं इधर ही रखिए, 2 और B को मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ। सो 2 इंटू F2 इंटू ए, ओके, होल डिवाइडेड बाय B। सो यहाँ पे और सिंप्लीफाइड में फॉर्म में लिखता हूँ मैं mg प्लस S2 इज इक्वल टू 2a बाई B, ओके, इंटू F2। मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हूँ मैं, जस्ट इसको ही रीअरेंज किया हूँ। सो आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज 1। ओके, सिमिलरली नाउ टेकिंग moments about O for minimum radius। अब मिनिमम रेडियस पोजीशन पे आपको मोमेंट्स निकालना है अबाउट पॉइंट O। ओके, हियर ऑल्सो यू हैव टू नेग्लेक्ट द मास ऑफ द बॉल, neglecting mass of the ball, and obliquity of arms। obliquity of arms बोले तो एंगल्स यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है करके कंसिडर करके मोमेंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम पे आएंगे, तो यहाँ पे देखो मिनिमम पोजीशन कब रहेगा,
मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन कब रहेगा गवर्नर का, इस पोजीशन पे। जब बॉल्स जो है ना इस पोजीशन पे रहता है तो मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा और मिनिमम रेडियस रहेगा गवर्नर का। तो हम यहाँ पे देखो ये वर्टिकल आर्म ये पोजीशन पे है तो हॉरिजॉन्टल आर्म ये पोजीशन पे रहेगा। जब वर्टिकल आर्म मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन पे ये वर्टिकल आर्म ए पोजीशन पे रहता है तो हॉरिजॉन्टल आर्म ए पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन पे आपको अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट निकालना है। यहाँ पे देखो सिमिलर सेम थिंग, यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे F1 फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, F1 फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसका मूवमेंट निकालेंगे हम फर्स्ट अबाउट ओ। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, वही यहाँ पे लिखता हूँ, फोर्स F1 इनटू ए। ओके, सो इसका डायरेक्शन देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे देखो F1 का डायरेक्शन जो है ऐसे है, तो अब पॉइंट ओ यहाँ पे है, तो पॉइंट ओ को सेंटर बना के ये F1 फोर्स को रोटेट करो। तो यहाँ पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो पॉइंट ओ यहाँ पे है, पॉइंट ओ को सेंटर बना के F1 फोर्स को ऐसे उसी डायरेक्शन में आप अबाउट पॉइंट ओ रोटेट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा अबाउट दिस पॉइंट F1। तो यहाँ पे F1 इंटू ये इसका मूवमेंट जो है डायरेक्शन जो है माइनस रहेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्स जो है नेक्स्ट फोर्स जो है ये वाला है mg प्लस S1/2। तो इसका मूवमेंट निकालेंगे हम, दिस फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज b। वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट o, सो फॉर दैट रीजन दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस b। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, mg प्लस S2 होल डिवाइडेड बाय b, और इसका प्लस या माइनस वो साइन देखना है। वो कैसे साइन देखना है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो mg प्लस S1, सॉरी ये S1 है, ये जो है S1 है। यहाँ पे देखो इसका जो मूवमेंट का जो है प्लस और माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो हम मूवमेंट अबाउट वो पॉइंट ले रहे हैं, तो वो पॉइंट को सेंटर बनाओ। यहाँ पे देखो इस ये फोर्स का डायरेक्शन जो डाउनवर्ड है, तो अभी ऐसे ये वो को सेंटर बना के वो के अराउंड घुमाओ ये इस फोर्स को, तो ये क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो हियर वी हैव टू टेक क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो अभी क्या करता हूँ मैं, रीअरेंज करता हूँ, mg प्लस S1/b। ओके, F1 ये जो है इसको मैं इधर लेता हूँ, F1 इंटू ए। ओके, mg प्लस S1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा इंटू b आएगा, इंटू यहाँ पे b आएगा, ये जो है 2 रहेगा, mg प्लस S1/2। ओके, ये जो फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है b है। ओके, यहाँ पे भी देखो इसको ही यहाँ पे लिखा हूँ मैं, और इसको मैं इधर लिया हूँ, यही इक्वेशन में इसको मैं इधर लिया हूँ। तो ये जो टर्म है इधर वही लिखा हूँ, इसको इधर लिया हूँ। तो mg प्लस S1 ओके डिवाइडेड बाय 2, और एक बार लिखता हूँ मैं इसको, इंटू ए। कैपिटल एस है ये। ओके, नेक्स्ट जो है अभी क्या करना है, रीअरेंज करता हूँ मैं इसी को। मैं इक्वेशन 1 जो है जैसे लिखे हम उसी फॉर्म में यहाँ इस इक्वेशन को भी लिखता हूँ। मतलब mg प्लस S1 को मैं इधर ही रखता हूँ, 2 और b को मैं उस तरफ लेता हूँ, राइट साइड में लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, mg प्लस S1 इज इक्वल टू 2 इंटू F1 इंटू ए डिवाइडेड बाय b। ओके, सो अभी इसको मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, mg प्लस S1 2 इंटू ए बाई बी इंटू F1। ओके, इसको इक्वेशन 2 करके लेता हूँ। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, subtracting equation 2 from equation 1 from equation यहाँ पे
subtracting equation 2 from equation 1. Okay, subtracting equation 2 from equation 1. So यहाँ पे equation 2 जो है ऐसे ले subtracting equation 2 from equation 1. तो यहाँ पे subtract करेंगे equation 2 को पहले लिखेंगे, equation 1 को पहले लिखेंगे क्योंकि equation 2 को हम equation 1 में subtract करें, तो equation 1 पहले लिखता हूँ। यहाँ पे देखो राइट साइड टर्म्स को राइट साइड में ही सब्सट्रैक्ट करना है, लेफ्ट साइड टर्म्स को लेफ्ट साइड में ही सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले मैं राइट साइड टर्म्स लिखता हूँ mg प्लस s2। इक्वेशन 1 का जो है इक्वेशन 1 का राइट साइड टर्म लिखता हूँ mg प्लस s2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड mg माइनस mg प्लस s1। अभी इक्वेशन 1 का राइट साइड 2 इंटू ए बाई बी f2, 2 इंटू ए बाई बी f2 माइनस इक्वेशन 2 का राइट साइड 2 इंटू ए बाई बी f1। ओके, तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, mg प्लस s2 माइनस mg माइनस इंटू प्लस इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस अगेन माइनस s1। सो 2 इंटू ए बाई बी f2 माइनस ऑफ 2 इंटू ए की टर्म है f1। सो यहाँ पे देखो प्लस mg माइनस mg विल गेट कैंसल, सो s2 माइनस s1 इज इक्वल टू व्हाट इज लेफ्ट ईयर। सो यहाँ पे देखो 2 इंटू ए बाई बी, 2 इंटू ए बाई बी, आई विल टेक इट एज कॉमन 2 इंटू ए बाई बी। सो व्हाट इज लेफ्ट ईयर f into the bracket f2 minus f1. Okay, you call this equation as 3. Okay, but spring force देखो यहाँ पे देखो, जब स्लीव इस पोजीशन पे रहता है तो स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहता है, जब स्लीव इस पोजीशन पे रहता है तो स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस्ड हुए रहता है। तो इसका फोर्स हम यहाँ पे देखो S1 और S2 जो है कैपिटल S जो है हम स्प्रिंग फोर्स करके लिए है। तो फोर्स जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने तक फोर्स जो है S2 माइनस S1 रहेगा, S2 माइनस S1 रहेगा। ऑल्सो स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप कर रहा है, दैट वी हैव टेकन S एज स्प्रिंग फोर्स S2 माइनस S1। ओके, और दिस स्प्रिंग फोर्स ऑल्सो वी कैन राइट इट एज, इस स्प्रिंग फोर्स को भी है नहीं हम स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग लेके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग जो है स्मॉल s है, ये स्मॉल s और ये जो स्लीव का जो डिस्टेंस है इसको हम मल्टीप्लाई किए तो आपको स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा। ओके, स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू S2 माइनस S1 एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल s इंटू x। स्प्रिंग फोर्स को हम S2 माइनस S1 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्प्रिंग फोर्स को हम स्मॉल s इंटू स्लीव लिफ्ट वो भी हम वैसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो यू कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ अभी जो है यहाँ पे इतना होगा। नेक्स्ट आई विल कंसिडर द ट्रायंगल्स हियर फ्रॉम ट्रायंगल्स। यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, यहाँ पे देखो मैं ट्रायंगल कंसिडर करूँगा। ओके, 2 ट्रायंगल B1O B2 ये एक ट्रायंगल हुआ, नेक्स्ट A1O A2 और एक ट्रायंगल हुआ। यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल्स हो रहे हैं, जस्ट इमेजिनरी ट्रायंगल्स यू कैन से। सो B1O B2 दिस इज वन ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल इज A1O A2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब यहाँ पे आप डिफरेंट पोजीशन पे दोनों के पोजीशन सेम रहेंगे ट्रायंगल्स के। तो यहाँ पे मैं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स करके कंसिडर करता हूँ। ट्रायंगल्स वो B1 B2 एंड A1 A2 आर सिमिलर। व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ, व्हेन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, this distance divided by B1 by B2
इज इक्वल डिवाइडेड बाय A1 बाई B1 बाई B1 B2 डिवाइड बाई A1 A2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब दो ट्रायंगल्स सेम सिमिलर हैं तो मैं बेसिस को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो B1 B2 और हाइट मैं इसको अभी क्या लेता हूँ, यहाँ पे OB करके लेता हूँ। B1 B2 डिवाइड बाई ये ट्रायंगल में जो है हाइट जो है, यहाँ पे देखो ये B1 O B2 ये ट्रायंगल में जो है बेस जो है B2 B1 टू B2 है और हाइट जो है B करके स्मॉल b, दैट इज OB। हाइट जो है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज दिस O to B। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, इस ट्रायंगल में B1 O B2 इस ट्रायंगल में बेस जो है B1 B2 है और हाइट जो है O to B है, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ B1 बाय B2 डिवाइड बाय OB, दैट इज इक्वल टू ये जो है नहीं, इसको इक्वेट करना है हमको। जब सिमिलर ट्रायंगल्स रहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये ट्रायंगल का A1 O A2 इसका बेस जो है A1 A2 है, A1 A2 है और इसका हाइट जो है, यहाँ पे देखो इसका हाइट जो है स्मॉल a है, सॉरी इसका हाइट जो है O to A है, तो O to A यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे देखो ये वो B1 B2 ये ट्रायंगल में बेस जो है B1 B2 है और हाइट जो है OB है। सिमिलरली ये ट्रायंगल में A1 A2 ये ट्रायंगल में बेस जो है A1 A2 है और हाइट जो है OA है। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ B1 to B2, यहाँ पे देखो B1 to B2 जो है ये जो डिस्टेंस है x है, तो यहाँ पे मैं x करके लेता हूँ। O to B जो है स्मॉल b है, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट A1 A2 ये डिस्टेंस जो है मैं यहाँ पे देखो रेडियस टर्म्स यूज़ करके A1 to A2 डिस्टेंस में कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है R2 है, यहाँ से मतलब A2 से स्पिंडल के एक्सिस तक डिस्टेंस R2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्पिंडल के एक्सिस से A1 तक डिस्टेंस R1 है, स्पिंडल के एक्सिस से A1 तक डिस्टेंस जो है R1 है। तो मैं यहाँ पे R2 माइनस R1 किया तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस मिलेगा A1 to A2। इफ़ आई सब्सट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2, अगर R2 माइनस R1 मैं किया बोले तो मुझे क्या डिस्टेंस मिलेगा, A1 to A2 डिस्टेंस मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखता हूँ R2 माइनस R1 डिवाइड बाई O to A। यहाँ पे देखो O to A जो है डिस्टेंस जो है A है, स्मॉल है, तो स्मॉल है। तो यहाँ पे मैं रीअरेंज करता हूँ टर्म्स को, ठीक है। सो x बाय, इसको मैं इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू B को इस तरफ लेता हूँ B बाय A, और मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। x इज इक्वल टू B बाय A इंटू R2 माइनस R1। ओके, यहाँ पे देखो x ये होगा x का वैल्यू। यहाँ पे देखो ये x का वैल्यू जो है ना, मैं यहाँ पे इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर x इन इक्वेशन 4। ओके, तो इक्वेशन 4 देखो s2 माइनस s1 दैट इज इक्वल टू स्मॉल s इंटू x। सो s2 माइनस s1 इज इक्वल टू स्मॉल s इंटू x जो है यहाँ पे देखो B बाई A इंटू R2 माइनस R1। ओके, सो नेक्स्ट दिस इक्वेशन आई विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 5। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो यू कैन सी दी सिमिलैरिटीज बिटवीन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। सो नाउ आई कैन इक्वेट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 5। ओके, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को इक्वेट करता हूँ मैं। 2 इंटू A बाई B
into F2 minus F1, that is equal to S into B by A into R2 minus R1 to R2 minus R1. ओके, सो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं. मुझे यहाँ पे क्या करना है, यस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द डेरिवेशन, आई वांट टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. तो यहाँ पे देखो रीअरेंज करता हूँ मैं टर्म्स को. सो यस बी बाई ए, और एक बार यही इक्वेशन, प्रीवियस इक्वेशन, यही इक्वेशन जो है पहले इसको लिखता हूँ, बाद में इसको लिखता हूँ. यस बी बाई ए इज इक्वल टू R2 minus R1, that is equal to 2 into A by B F2 minus F1. ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, मुझे स्मॉल एस को इधर ही रखिए, बाकी टर्म्स को उधर लेना है. स्मॉल एस आई विल कीप ऑन द लेफ्ट साइड इटसेल्फ, बाकी टर्म्स इधर लेता हूँ मैं. सो 2 एज इट इज़. यहाँ पे देखो ये इधर लेफ्ट साइड में लिया तो ए इसको राइट साइड में लिया तो यहाँ पे ए इंटू ए हो जाएगा, और बी इसको यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बी इंटू बी हो जाएगा. ओके, सो F2 माइनस F1 होल डिवाइडेड बाय, इस टर्म को अभी यहाँ पे राइट साइड में ले रहा हूँ, R2 माइनस R1. ओके, सो यहाँ पे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, ए इंटू ए इज़ ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर होल इंटू F2 minus F1 divided by R2 minus R1. So this is what stiffness of the spring, expression for stiffness of spring. Okay, so this will be the expression for stiffness of the spring. नेक्स्ट अभी फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के हमको एक्सप्रेशंस फाइंड करना है. यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्सप्रेशंस को. यहाँ पे देखो, एट एनी इंस्टेंट आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करना है बोले तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इक्वेशन है, वही इक्वेशन यूज़ करना है. एट एनी इंस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is given by F is equal to F1 plus F2 minus F1, that is into R minus R1, R2 minus R1. Okay, where R is the radius of rotation, at that instant. Okay, also F1 is equal to m omega 1 whole square R1, F2 is equal to small m omega 2 square R2, F3 small m omega 3 whole square R2. Okay, and omega 1 is equal to 2 pi n1 divided by 60. omega 2 is सिर्फ F5 है, F3 नहीं रहेगा, सिर्फ F रहेगा. ठीक है, omega 2 pi n2 by 60, omega is equal to 2 pi n by 60. Okay, this is what about the derivation of the Hartnell governor. Okay, so you please go through it and write down by yourself. Okay, and if you have any doubts, you can contact me, or you can clarify your doubts in the classes. Thank you.